I'll tell you Yes, how ma'am. to proceed a GD, okay, and what is the Okay. basic Okay. procedure. Fine. Okay. Okay. So first of all, GD will be in 3 parts. The first one is introduction, then the discussion, and then the conclusion. So how to say the introduction? Hi friends, my name is this. Today the topic for the discussion is whatever the topic is. Then you have to give the meaning of the topic so that your teammates can understand what is the topic. Okay. Okay. After that, you can give a point of yours, whether it is positive or negative, whatever you think is. Fine. Okay. Then Okay. you will open the house for the discussion for others. Now, we Okay. have to make sure and we have to keep in mind that language is not a barrier. You can use any language, like you can speak in English or in Hindi or the mix of both. So language is not Okay. a thing. You are not going to get more points if you speak in English. Right? Okay. Okay. And please keep in mind, it is a discussion, it is not a debate. So you don't have to stuck to only one part. That I'll start with the positive points. So I'll say all the positive points only. I can't go for the negative points. No, it's not like that. If you're thinking that this topic has 2 positive and the 3 negative, then you can say all the 5 points. It is a discussion. It is not a debate. Fine? Make sure we do not cut each other multiple times. You can cut once or twice just to take your time, like just to take your attention, but we don't have to cut each other multiple times. Fine. Okay. Then the discussion will goes on, and after that there will be conclusion. How should be the conclusion? Conclusion should be generic one. You have to add the other person's point to the conclusion. You don't have to say your points only or what your mind says. Fine. You have to include all the points, like the good points that other people spoke, and then you have to give a generic conclusion for that. Got it? Yes, ma'am. Okay. Try to justify your points with examples, and we will not use controversial examples or the facts that you are not sure about. And even if you are sure about, try to use facts by the word approximate. Okay, like if you are going to give a percentage for something, then say approximate this percent. Don't say exact. Fine. Yes, ma'am. Okay. Clear? So this will be the GD like procedure, how you will conduct the GD. Fine. Now, what all are the aspects on which you will be getting judged? So what it will be? Your overall personality, how you are behaving, how you are your hand gestures, how you are sitting, how attentive you are to others people's point. Okay. You have to speak your point, but at the same time, you should listen other people point as well. Right? That only then you will be able to give the relevant example at the same time. Okay. Okay. Fine. Yes, ma'am. Yeah. Okay. So now I'm going to reveal the topic for the GD. And I'll give you 2 minutes for note down the points for this GD. Okay. Yes, First ma'am. of all, who will start with the introduction? मैम मैं स्टार्ट करूंगा इस बार. Harsh will start with the introduction. And who will conclude? I will, ma'am. Okay, Dheeraj will conclude. Okay, guys who are attending GDs and you are not like taking initiative, please do. Yesterday I said this to Nilesh and he concluded, but again Nilesh, you are not interested today. So please take initiative, at least try a chance. If you are not doing good, then you will have an option or have time to prepare, right? Ayush, you are Okay. attending GDs regularly. So please try to introduce or conclude the GD. Okay, it will build your Yes, confidence ma'am. I as am well. always ready. Yes, ma'am. Okay. Like I want So- to give other also the opportunity to Okay. speak. So Harsh will introduce first and Dheeraj will conclude today. Okay. So the topic for the discussion is green growth. Topic for the discussion is green growth. मैम Topic समझ आया? ग्रीन ग्रोथ. Green growth. मैम एक Topic बार समझ आया सबको? स्पेलिंग एक बार मैम. ग्रीन और ग्रोथ. जी, Oh. ग्रीन कलर जो ग्रीन होता है, GREEN, ग्रीन ग्रोथ. ठीक है. ठीक है. टॉपिक क्लियर है सबको? मैम टॉपिक एक बार थोड़ा सा एक लाइन में अगर थोड़ा सा हिंट दे Okay. दीजिए. Okay.
So basically, what is green growth? Green growth is an approach to for the economic development that emphasizes the minimal or the careful sustainable use of natural resources. Okay. समझे? Green Okay. growth, like we have to develop, but in such a way that our environmental will be safe. सो दिस इज कॉल्ड ग्रीन ग्रोथ. अब इसको आप बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे डिस्कस कर सकते हो. इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कैसे हो सकता है, ठीक है, इसमें क्या क्या परेशानियां आएंगी, ठीक है, क्या पॉलिसीज हो सकती हैं. सो ये कुछ डायमेंशंस हैं, ठीक है. अब मैंने आपको बता दिया है टॉपिक का मतलब, एंड आई हैव गिवन यू डायमेंशंस एज वेल. सो it's 2:42 by my side. We'll start at 2:45. Okay, note down your points. Okay. Okay, Dheeraj. So Harsh will introduce now. So Harsh, please start with the introduction. Yes, ma'am. Hello, everyone. Thank you for letting me initiate the GD. Uh, the topic for today is green growth. So we're gonna discuss actually what is the meaning of green growth and what are the various aspects in which green growth can be applicable in nowadays, and what are the pros and cons of green growth, what are the drawbacks, and what are the challenges we have to face in implementing the green growth in I mean to say in the modern era, so that the resources for the future generation can be preserved, as well as the resources of the present generation can be implemented efficiently. So here I'm opening the house for everybody to speak. So yeah, thank you. So I think मैं green एक growth point add here करना means is चाहता the sustainable growth. यहाँ पर ग्रीन ग्रोथ से मतलब है सस्टेनेबल ग्रोथ, कि कैसे हम अपनी ग्रोथ को सस्टेनेबल करें, ताकि हम अपने ग्रोथ के साथ साथ इन्वायरमेंट को भी हार्म ना पहुंचाएं, उसे सस्टेनेबली उसे मैनेज करें. मैं इस पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि देखिए हम लोग पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन फ्यूल्स का ज्यादा यूज किया जाता है। तो उससे क्या होता है, पॉल्यूशन
और क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम आती हैं, तो उसके अलावा हम लोग के पास अल्टरनेटिव सोर्सेज अवेलेबल हैं। फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर व्हीकल्स में यूज कर सकते हैं, जैसे कि सीएनजी हो गया, नेचुरल गैसेस हो गया। या फिर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो हम लोग सोलर पैनल का यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का यूज कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, पॉइंट पोल्यूशन के कंटेंट्स कम होंगे So और the yes, correct. हाँ, So the देखिए first benefit of green growth is अम, like currently we are seeing the environment, what kind of climate change is going on, and what are its impact on the economy and other sector of the economy. So the first thing will be that we will decrease the carbon emission, while we will definitely seeing the transition from the non-renewable source to renewable source of energy. So definitely first impact on the environment. देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। देखिए जो ग्रीन ग्रोथ होता है वो उसके लिए एफिशिएंट टेक्नोलॉजी की जरूरत है। अगर हमें चीजों को पॉल्यूशन फ्री बनाना है तो उसके लिए हमें अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। लेकिन जो एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा बहुत ज्यादा लगता है। तो ये जो ग्रीन ग्रोथ है ये एक आई मीन टू से इट इज आई मीन इट हाई रिक्वायर्स कॉस्ट। अमाउंट ऑफ मनी first thing, and second thing, it requires a lot of amount of research, and since it और requires मुझे a lot मुझे of amount I of agree with research, therefore it I is agree with also the time taking process because here research is required. I हम agree with लोग the whole point. कुछ सर चीज ऐसा है, जैसे कि कुछ कैंपसेस हुआ, जैसे कॉलेज की कैंपस, अगर हम लोग उसको ग्रीन बनाने के लिए हम लोग बाईसाइकिल का यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट वहां पे व्हीकल्स जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करे उस चीज का यूज ना करे, तो इससे इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा असर पड़ता है। और जैसे कि हम देख सकते हैं बहुत सारे कॉलेजेस जैसे कि आईआईटी एंड मेडियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये चीज लागू किया गया है कि स्टूडेंट्स को वहां पे कैंपस में व्हीकल्स को अलाउ नहीं किया जाता है। तो उससे क्या होता है कि पूरा इन्वायरमेंट जो होता है उस पर्टिकुलर एरिया का वो ग्रीन होता है, और फिर वहां पे कार्बन एमिशन एकदम मिनिमल कर दिया जाता है। और ये चीज हम लोग बहुत सारे ऑफिसर जैसे कि आईओसीएल के भी प्रेमिसेस में यूज कर सकते हैं, कि हम लोग इंटर डिपार्टमेंट जाने के लिए कुछ व्हीकल जैसे ई व्हीकल्स का यूज करें या फिर बाईसाइकिल का यूज करें। तो इससे हम लोग का उस प्रीमिसेस का एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन बहुत मिनिमल हो सकेगा। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल agree देना with चाहूंगा। Shubham अगर का हम point. अपनी रोड कंस्ट्रक्शन will be देखें तो helpful in the health हम उसमें sector, देख सकते हैं like कि जो हमारी रोड कंस्ट्रक्शन है, अगर कोई रोड हमारी किसी जंगल से होती हुई जा रही है तो जो पहाड़ को डिवाइड करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए एक ग्रीन हाईवे बनाए हुए हैं जिससे जो एनिमल का जो मूवमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो और वो हम नेचर के हार्मनी के साथ अपनी कंस्ट्रक्शन को भी कर सके, ताकि एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट करने के लिए जो सबसे बड़ा ग्रीन हाईवे वो इंडिया में ही है, जो कि जंगल के एक पहाड़ को दूसरे पहाड़ से कनेक्ट करता है, correct, जो कि correct. रोड के बनने से डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ मैं तो धीरज की मैं एक बात पॉइंट मैं धीरज की बात में एक पॉइंट और ऐड करना हेल्थ अनदर एक सेक्टर है चाहूंगा। जहाँ पे ग्रीन ग्रोथ का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आज हम लोग देख रहे हैं वी आर इनहेलिंग लॉट्स ऑफ टॉक्सिक गैसेज, आवर वाटर रिसोर्सेज आर आल्सो टॉक्सिक नाउअडेज। तो अगर हम ग्रीन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं तो हमारा इमिशन जो है व्हीकल का वो कम होगा। हम ऐसे व्हीकल का यूज करेंगे जो जो या तो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली रिन्यूएबल सोर्सेज से आनी चाहिए, ना कि कोल बेस्ड पावर प्लांट से। तो हमारा जो एक्सपेंसेज है ऑन द बोलिए। I'm sorry to say डिक्रीज that होगा, the क्योंकि topic इमिशन is के कारण totally बहुत सारी बीमारियां जनरेट होती है, जो कि हम लोग बहुत सारे अखबार में पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे भी हमारा मनी भी सेव होगा और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहेगा, और ये डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा हर आदमी का, और ये इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेगा डेफिनेटली। देखिए मैं मैं एक एक पॉइंट I'm ऐड sorry कर to say that धीरज की I'm बात से sorry मैं to say आपको that the कहता हूँ, topic is totally धीरज ने diverting towards the pollution. धीरज ने बात बोली थी उसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। देखिए कोई भी ग्रोथ या कोई भी एक्स्ट्रा हम डेवलपमेंट करते हैं तो उसके लिए अगर हम पेड़ों को काट रहे हैं, अगर हम प्लांट्स को हटा रहे हैं, या अगर हम आई मीन टू से अगर हम फार्मिंग के साथ, अगर हम वेजिटेशन के साथ अगर हम छेड़छाड़ कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी ग्रीन ग्रोथ के सपोर्ट में नहीं हो सकता। तो वही ग्रोथ वास्तव में ग्रीन ग्रोथ है जहां पे हम वेजिटेशन और प्लांटेशन के साथ छेड़छाड़ ना करें, उसे एक्सप्लॉइट ना करें। थैंक यू। जैसे कि करेक्ट, आई एग्री विद यू। मैं फ्रेंड्स के सामने एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे कि मेजर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, कंजम्पशन और रिसोर्सेज। तो अगर हम लोग रिसोर्सेज को मैनेज कर लें, जैसे कि रिसाइकलिंग वन ऑफ द मेजर एक फैक्टर, मतलब मेजर एक तरीका है
हम लोग रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं प्रॉपर वे में। जैसे कि अगर मेरे फ्रेंड ने अभी एग्जांपल दिया, तो रिसाइकलिंग में जैसे कि हम लोग एक चीज यूज करते हैं जो खाद होता है, जो सूखा कचरा होता है या गीला कचरा होता है, तो गीले कचरे को हम लोग उससे खाद बना सकते हैं, तो ऐसे रिसाइकलिंग है। या फिर मेरे फ्रेंड ने ट्रीज का एग्जांपल दिया, तो जैसे कि हम लोग एजुकेशन में कॉपीज की, पेजेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर हम लोग उसका रीयूज करें, यस, रिसाइकिल करें, तो ट्रीज यस, कटिंग बहुत कम करेक्ट। हो जाएगी। आई ऑल्सो वुड लाइक टू ऐड, हम लोग वो गीला कचरा से सीबीजी बना सकते हैं, उसके बाद हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं, और ये इससे करके हम लोग वो जो हमारा बाय प्रोडक्ट आ रहा है उसे हम लोग फेंकने के बजाय हम लोग उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे I'm एक sorry चीज to और say ऐड that करना चाहता हूँ the कि topic is देखिए totally जितने भी diverting towards the पेट्रोकेमिकल प्लांट्स pollution. या प्लीज बोलिए। Uh, Yes. Sorry to say that the topic is totally diverting toward the pollution, but the topic is here is not about towards pollution. The what green growth means that it is we have to develop ourselves and our country or the world towards this sustainable development, in which the future generations also get the effects, which means that they also should get the fruits which are we are getting Yes, through the but in a technology. greener manner, like we cannot emit or we cannot pollute our mother earth. So Yeah, that You is are so right. green growth. yeah, I Yes. want to say one thing here. I want to say one thing because just like my friend said that that recycling is very important. So the first thing that comes to our mind is water. The water is majorly polluted nowadays. So an efficient technology is being developed also and is being implemented by the I mean to say by the Japanese government. I have seen that I mean that one of the major Japanese companies it is implementing a new technology that recycles the water and cleans the water. So these kind of technologies are very essential because if water, it is a basic need of our future generation. Yes, If we I support. sacrifice with the water, Yes, then everything will be damaged. I support you, मुझे and I लगता है would कि like to इसमें हमें add, like many एग्रीकल्चर का भी ध्यान organizations देना चाहिए, are मतलब achieving, एग्रीकल्चर are on the फर्टिलाइजेशन way यूज to ना achieve the करके target हमें of net zero. Net zero means net zero CO2 emission, net zero water, water wasting. So definitely, we the organization in India and in other country also are very conscious about this and are doing a great job in this field. हमें I agree हम with एग्रीकल्चर the लोग में ये first भी कुछ point that देखते हैं कि चेंजेस करने बहुत पड़ेंगे। सारे देखिए इस जगह एग्रीकल्चर पे में हमें बहुत एग्रीकल्चर में सारे I हमें agree with कंट्रीज the में first ग्रीन point. फर्टिलाइजेशन बिल्डिंग को का कॉन्सेप्ट आया है। ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें जो कि हम लोग भी अपने कंट्री में यूज कर सकते हैं। हम लोग जो भी गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहां पे ग्रीन बिल्डिंग का कंसेप्ट लाए। वहां पे जैसे कि अब देखते हैं कि ऑफिस नहीं चल रहा है, तो वहां पे कुछ लोग नहीं रहते पर्टिकुलर एरिया में, तो वहां पे अगर लाइट अपने आप स्विच ऑफ हो जाए, जैसे इंफ्रारेड सेंसर का यूज करके, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होगा। और फिर हम लोग उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर देंगे, तो हम लोग को टेम्परेचर को मैनेज करने में भी अच्छी हो गई, और फिर हम लोग एसी का भी बिल हम लोग का कम आएगा। तो हम लोग इस कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। I want to say that in order to decrease the electricity consumption, we no, we use I'm sorry regarding that point. No issues. We can continue. I mean, to say So Okay, something. sir. yes, मैं एक so पॉइंट so मेरा एक और पॉइंट है कि भारत Yes. एनर्जी ट्रांजिशन कर मैं रहा है, लाइक वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल टू रिन्यूएबल सोर्सेज। वी हैव सीन we have lots of huge solar park in India. We are also investing in wind energy. We are investing in green hydrogen technology. Like we have seen, Prime Minister came up with green hydrogen mission. We are investing in geothermal. We are investing in hydro what electricity generation plant. So definitely we are and nuclear energy also. So definitely we are towards the green growth. I जैसे want मैं to एक और पॉइंट ऐड ऐड करना करना चाहता हूँ। चाहूंगा, जैसे हम I want to have आयुषेल का my friend एग्जांपल है, Ayush has made a आयुषेल good ने point. बहुत सारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को वो कर रहा है, इनिशिएट कर, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो आयुषेल का काफी अच्छा रोल है जो कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी को वो करने में, प्रमोट करने में, ताकि जो हमारी जो ग्रोथ है ग्रीन वो रहे, यहाँ मैं ग्रीन एक ग्रोथ चीज रहे। ऐड मैं एक करना पॉइंट चाहता हूँ, ऐड करना एक चीज चाहता हूँ। बहुत बहुत क्रूशियल पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है जैसे आयुष ने बोला कि ग्रीन एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन ये जो फ्यूल्स होते हैं, ये सबसे ज्यादा आई मीन टू से इनका अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे जितने भी पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं,
ये बहुत ज्यादा आई मीन टू से सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यही पैदा करते हैं, क्योंकि इनमें जो फ्यूल यूज होता है वो होता है ग्रे हाइड्रोजन। दैट ग्रे हाइड्रोजन इज फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। और फॉसिल Yes, फ्यूल जो correct. भी होगा, इट विल एमिट आई मीन टू से पॉल्यूटेड गैसेस। तो उसका ऑल्टरनेट जो निकाला गया है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन क्या करता है? ग्रीन हाइड्रोजन को जब भी हम यूज करेंगे तो वो खाली ऑक्सीजन और वाटर को रिलीज करता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फ्री फ्यूल है। अभी रिसेंटली मेरे दिमाग में एक एग्जांपल आया है। जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है वो इस चीज में बहुत अच्छा काम कर रहा है। दे हैव सेट अ पोर्टफोलियो दैट बाय 2046 all the plants of IOCL will have green hydrogen as their fuel. मैं और मैं इसी एक पॉइंट Yes, और sir. टॉपिक एक ऐड पॉइंट करना ऐड करना चाहूंगा कि चाहता हूँ। जैसे हम देखें मैं जो बड़े एक बड़े पॉइंट प्रोजेक्ट होते हैं उनके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, तो वो थोड़ा बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए ताकि जो इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ता है थोड़ा कम पड़े। जैसे गवर्नमेंट ने बस वो ला रही है, जो बड़े प्रोजेक्ट हैं कि कुछ कि समथिंग अबाउट सम करोड़, उनके लिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कंपलसरी होती है बाय द गवर्नमेंट, तभी उन प्रोजेक्ट को अलाउंस मिलेगा कि वो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के Correct, इनिशिएटिव और correct. लेने चाहिए। मैं एक पॉइंट मैं ऐड एक करना और चाहता हूँ पॉइंट इस पे IOCL के मैं एक रिगार्डिंग पॉइंट मैं ऐड करना चाहता एक हूँ इस पॉइंट पे। और ऐड करना चाहता ग्लोबलाइजेशन हूँ कि मैं हाइड्रोजन ग्लोबलाइजेशन के में सबसे करस्पॉन्डिंग बड़ा एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी आपने शायद 2 साल पहले न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया में जो मोदी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, तो उसने डिसाइड किया था कि ग्लोबल लेवल पे जहाँ जहाँ पे भी हम लोग कनेक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब हम लोग अलग अलग देशों में एक लिंक वायर के थ्रू लिंक क्रिएट करेंगे। जिससे क्या होगा, कभी क्या ऐसा होता है कि किसी देश में किसी समय दिन होता है तो किसी देश में किसी समय उसी समय रात होता है। तो अगर हम लोग एक नेटवर्क प्रोड्यूस बना लेते हैं हर देशों में वन नेट वन ग्रिड। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए, तो क्या होता है, अगर जिस कंट्री में अगर दिन है तो वहां से सोलर एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। तो अगर हम ग्लोबलाइजेशन के थ्रू भी हम लोग सस्टेनेबल रिसोर्स का इस्तेमाल करके इकोनॉमिक हर करेक्ट, कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में करेक्ट. कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं एक चैलेंजेस के इसका ऊपर बात नाम था करना वन चाहता अर्थ हूँ, वन लाइक ग्रिड का। आई थिंक जो क्लाइमेट इनिशिएटिव का नाम फाइनेंसिंग था वन क्लाइमेट अर्थ वन फाइनेंसिंग ग्रिड। इज वन ऑफ द चैलेंजेस। लाइक जो इमिशन अभी कर रहे हैं वो सारे डेवलप्ड नेशन कर रहे हैं, बट जो गरीब नेशन है उनको उनके पास पैसा नहीं है कि वो लोग ग्रीन एनर्जी या जो भी है ग्रीनर के तरफ शिफ्ट करे। तो वहां पे ये एग्रीमेंट पेरिस एग्रीमेंट में हुआ था कि जो भी डेवलप्ड नेशन है वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे डेवलपिंग नेशन या फिर पुअर नेशन को ग्रीन ग्रीन डेवलपमेंट के लिए। बट वहां पे दिक्कत आ रही है, वो लोग पैसे दे नहीं रहे हैं। तो ये एक मेजर चैलेंज है डेवलपिंग और पुअर नेशन के लिए कि वो लोग कैसे The points जी which और you are saying, my और friend, ग्रीन मैं डेवलपमेंट के तरफ। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड the कर points. दूंगा आपको। जैसे लिंगला जैसे अभी बोल रहे थे कि हमारा जो टॉपिक सिर्फ सिर्फ आई मीन टू से पॉल्यूशन फ्री होना नहीं है। हमारा टॉपिक है उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है कि उसके लिए हमारे जो जितने भी आज की जो आई मीन जनरेशन है, सबसे बड़ा रोल उसी का है। अगर वो जरूरत से ज्यादा एक्सेसिव अपने अपने रिसोर्सेज को, बिजली को, पानी को एक्सेसिवली कंज्यूम करेगा तो आने वाले टाइम में इनका आई मीन टू से द फ्यूचर जनरेशन विल लैक इट। So everything और इस depends on the I mean to say the common population. They have to be aware. They have to be responsible. यस, और लाइक दे The हैव इसके टू लिए points which यूज are मैं said by हम you, पब्लिक लोग my को friends, are very ट्रांसपोर्ट। good. जो वन भी पर्सन वन कार इज एग्जॉस्टेबल अ बिग रिसोर्सेज चैलेंज। है उसका कम हम लोग यूज करके जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है जैसे विंड इलेक्ट्रिसिटी, विंड हुए, सोलर एनर्जी में हम लोग को उसके तरफ शिफ्ट करना चाहिए। और उसमें भी जो चैलेंजेस है हम लोग को उस पर डिस्कस करना चाहिए कि वो कैसे हट सकता है। जैसे कि मुझे लग रहा है ग्रीन The हाइड्रोजन में मुझे हम लग points लोग रहा which है are बोल said by सकते हैं my कि friends are very बहुत ही correct. अच्छा स्टेप है, बहुत ही अच्छा मुझे लग रहा स्टेप है है, इंडिया लेकिन इसमें काफी उसमें अच्छा काम कर 50 भी से रहा है। अगर हम देखें इंडिया में जो सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो इंडिया में ही है। तो इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रो करने में, कि उन्हें कैसे कैसे यूटिलाइज कर सके। तो सबसे बड़ा जो सोलर पार्क है वो वर्ल्ड का वो इंडिया में ही है। मुझे लग रहा है इंडिया काफी अच्छा काम कर रहा है इस सेक्टर में। और The points which are ग्रीन said by my हाइड्रोजन में friends भी are very जेट correct. जेट जैसे That है, उसमें भी बहुत by सारे introducing चैलेंजेस है। जैसे कि उसका स्टोरेज में हम लोग को 50 से 60% जो फाइनल एंड में होता है कि वो रिप्लेनिश हो जाता है, वो एग्जॉस्ट हो जाता है। तो ये सब चैलेंजेस है हम लोग के ग्रीन हाइड्रोजन में भी। देखिए जैसे धीरज ने बहुत अच्छी बात कर बोली थी कि अभी की जैसे भारत में सबसे बड़ा सोलर पार्क है। ये अगर सोलर पार्क मेजर मेजर एरियाज में है, आई मीन दैट इज गुड। लेकिन हर घर में भी अगर हम एक एक पैनल हो जो कि बिजली जनरेट करे,
तो भी हम आई मीन टू से जो एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन है उसको रोक सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हर किसी के घर में एक Yes, सोलर तो। yes, correct. इसी Similarly, के water also. हाँ We are wasting lots of water on daily basis. We can conserve, and people are aware but not following in a strict manner. So we are also responsible in this green growth by saving water, saving electricity, and Yeah, other thing which we are wasting. request Lingla to speak. He has not spoken Yes. many points. I request him to speak, please. The points which you are said by is very good. I also want to say that by educating the people and by introducing some of the lessons to the subject which are further generation are going to be learned. If they learn at the basic stage, they can implement in their future and at their home, so that some of the criteria of green growth will be satisfied by the students and the यस future मैं एक generations. यस करेक्ट एक बेनिफिट बताना चाहता हूँ ग्रीन ग्रोथ का कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री ने 50,000 करोड़ रुपया सेव किया है बाय इथेनॉल ब्लेंडिंग. So that is a huge number. Like we are importing lots of fossil fuel from other country. So we can produce ethanol by many raw material like rice stem or जो टूटा हुआ राइस है और अदर जो वेस्ट है ऑर्गेनिक वेस्ट उससे प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगर इस तरह से कहेंगे तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी बढ़ेगा और ये भी एक ग्रीन ग्रोथ के तरफ हमारा जो Okay, मैं Dheeraj, conclude, ग्लोबलाइजेशन please. में Dheeraj, please एक पॉइंट conclude. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So guys, we have a very good discussion about the topic, and I guess I got the opportunity to conclude this topic. So we discussed many aspects of the green growth, which is more close to the sustainable growth. कि हम कैसे क्या क्या स्टेप लें जिससे हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर सके. इसमें हमने बहुत अच्छे टॉपिक डिस्कस करे, जैसे कि हम चीजों को रिसाइकल करें ताकि उनका कंजप्शन कम हो, उनका प्रोडक्शन कम हो. वाटर को रिसाइकल करें, हम ग्रे हाइड्रोजन की जगह ग्रीन हाइड्रोजन में शिफ्ट हो ताकि जो पॉल्यूशन है वो कम हो. जीरो कार्बन एमिशन कैसे अचीव करें. और एक बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया था कि जो इंडियन इनिशिएटिव लिया है कि वन अर्थ वन ग्रिड, जिसमें पूरे अर्थ को ग्रिड से वो किया जाए, कनेक्ट किया जाए, तो जहां पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो उन देशों को दिया जाए जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट ज्यादा है. तो इस तरह के इनिशिएटिव बहुत सारे आईओसी ने भी लिए हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी में, जैसे सोलर में, विंड में कभी इन्वेस्ट भी कर रहा है. मतलब आईओसी शिफ्टिंग फ्रॉम इन अ गुड वे, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इन अ गुड वे. सो और गवर्नमेंट भी काफी अच्छी स्टेप लेता है, जैसे वो ग्रीन हाईवे बनाता है और जब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, तो ये ज्यादा स्टेप जो गवर्नमेंट भी अच्छे कर रहा है इस फील्ड में. थैंक यू. Okay. कैसा लगा आप सबको आज का टॉपिक? Good man. अच्छा था. फ्लो नहीं बैठ पाया, मतलब थोड़ा जो एक पॉइंट्स कम थे. पॉइंट कम points थे, कम थे. फ्लो नहीं बैठ पाया जैसा आई मीन जैसा होता है जीडीज में. पॉइंट्स But- कम थे, मुझे तो आप लोगों को इंटरप्ट करना पड़ा कि भाई कंक्लूड कर दो. टॉपिक छोटा था लेकिन इसके एक्सपेक्ट बहुत ब्रॉड थे. Broad किसी मैं किसी बताना चीज से किसी वो भी हुआ कर डायमेंशन में सकते ले जाया जा लोगों को लग रहा Yes, था कि इसमें और किसी- सारे डायमेंशन होंगे पर वो खोज नहीं पा रहे थे. हैं. इसमें व्हाट बहुत आई सारे फील एक्सपेक्ट. ना इन ओवरऑल जीडी, जी. मुझे क्या फील हुआ कि आज का जो टॉपिक था ना वो बहुत अच्छा और बहुत रेलेवेंट टॉपिक था, और इसके Yes, ऊपर ना ma'am. आप बहुत अच्छे पॉइंट्स डिस्कस कर सकते थे. आपने काफी पॉइंट्स डिस्कस किए जो रेलेवेंट थे, अच्छे थे, बट हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? सिर्फ हाउ, कैसे कर सकते हैं. हमारा जो मेन फोकस था ना वो वहां पर रह गया. दैट इज नॉट अ बैड थिंग कि चलो ठीक है आपने एक डायमेंशन में ऐड किया उसको, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं ना इनमें बोलने के लिए बहुत कुछ होता है आपके पास, कितनी डायमेंशंस होती हैं, और ये बहुत रिलेटेबल टॉपिक था. आप इसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स, अगर आप डायमेंशन सोचते हैं ना कोई दूसरी अलग, तो आप उसमें बहुत अच्छे पॉइंट्स भी बोल सकते थे. बहुत अच्छे पॉइंट्स थे इसके लिए जो मुझे ओवरऑल Yes, जीडी में ma'am. लगा. हुआ क्या, बस एक ने हाउ स्टार्ट कर दिया कि कैसे कर सकते हैं, एंड फिर सब उस हाउ को फॉलो कर रहे थे कि अच्छा इसने बिजली बचाने का बोल दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, तो मैं पानी बचाने का बोल देता हूँ. इन्होंने पानी बचाने का बोल दिया तो मैं पेड़ बचाने का बोल देता हूँ. तो ये हुआ है. मैंने 3-4 बेनिफिट भी डिस्कस किए थे लाइक इकोनॉमी पे, हेल्थ पे ऐसे तो आप और लोगों ने चैलेंजेस environment भी पे. डिस्कस किए हैं. यस मैम. यस मैम. Yes, ma'am. बट द मेन फोकस वाज ऑन हाउ. मैम चैलेंज थोड़े कम, हमने चैलेंज के बारे में ज्यादा बात नहीं करी, 3-4 ही पॉइंट, ये गलती होगी. ठीक है, सबसे पहले वील स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन. हर्ष ने इंट्रोड्यूस किया.
हर्ष, इंट्रोडक्शन आपका अच्छा नहीं था, ठीक है, दैट वॉज टोटली एवरेज। रीजन, आपने जब इंट्रोड्यूस किया ना, यू सेड इन स्टार्टिंग दैट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टॉपिक और व्हाट आर द डायमेंशंस, देन यू गिव 2-3 डायमेंशंस टू द टॉपिक ऑन विच द टॉपिक कैन बी डिस्कस्ड, ठीक है, बट इट वॉज योर ड्यूटी टू इंट्रोड्यूस द मीनिंग ऑफ द टॉपिक फर्स्ट, दैट यू मिस्ड। Got it? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Then after that he just started green growth is sustainable growth. उन्होंने मीनिंग क्लियर किया कि ग्रीन ग्रोथ को Yes, ma'am. सस्टेनेबल ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो अटेंटिव था धीरज, उसने देखा कि आपने मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया है, तो ही सेड इट इन 1 लाइन। ओके, आफ्टर दैट आयुष ने नीलेश ने पॉइंट दिया कि कैसे कर सकते हैं, यहाँ से शुरू हुआ हमारा हाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी डन, राइट, यूज ऑफ ईवी व्हीकल और सोलर पैनल। फिर आयुष ने पॉइंट दिया, फिर हर्ष ने पॉइंट दिया एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए। देन हर्ष ने क्या किया, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, उसका ड्रॉबैक साथ ही बता दिया, बट यार वो तो बहुत कॉस्टली है। एंड देन ही सेड इसके लिए बहुत रिसर्च भी चाहिए। Yes, ma'am. That was क्या challenge होता part. है ना, या हर्ष क्या होता है ना, आप जो पॉइंट बोलते हो ना, ट्राई टू स्पीक 1 पॉइंट एट अ टाइम बट मेक इट क्लियर, ठीक है, Yes, ma'am. कि सामने वाले कोऑर्डिनेटर को समझने में प्रॉब्लम ना हो। Okay, ma'am. Okay, ma'am. एंड धीरे हर्ष, ट्राई टू मेक योर पॉइंट्स कंसाइज। आपका जब चाहते हो ना इन फ्लो आप ना बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते हो, बट फिर वो एक्सप्लेनेशन लंबा हो जाता है। इन एक्चुअल जीडी यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस मच ऑफ टाइम। Okay, ma'am. हो सकता है फाइनल जीडी सिर्फ 10 मिनट की हो और उस 10 मिनट में 10 बच्चे हों, तो मतलब मैम आज तो आप लोग 6 ही हो सिर्फ। एक दो लाइन में ही अगर हम बोल दे तो that is enough. या ट्राई टू मेक इट कंसाइज एंड क्रिस्प, Yes, ठीक ma'am. है। देन शुभम ने स्टार्ट किया कि कॉलेज कैंपस ग्रीन होना चाहिए, फिर ईवी व्हीकल्स का बोला शुभम ने यहाँ पर। धीरज ने ग्रीन हाईवे की बात की कि वैसे भी इंडिया में ही है ग्रीन हाईवे। फिर आयुष ने एक अच्छा ये पॉइंट दिया था कि हेल्थ इंप्रूव होगी। आयुष, ये पॉइंट आपका अच्छा था, बट दैट इज इन बेनिफिट्स, राइट। Yes, ma'am. फिर हर्ष ने वेजिटेशन का बोला, प्लांटेशन शुड नॉट हैम्पर। फिर वही हम यहाँ पे पॉल्यूशन के ऊपर फोकस हो गए थे ज्यादा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर। देन नीलेश ने अच्छा पॉइंट दिया रिसाइकलिंग का, फिर आयुष ने एग्जांपल भी दिया रिसाइकलिंग का, वाटर सेविंग के लिए। फिर हमारी बात हुई इलेक्ट्रिसिटी को कैसे प्रॉपरली यूज करना चाहिए, फिर हम हाइड्रो एनर्जी पर आ गए, राइट। ऑल एंड ऑल ना, ट्राई टू फोकस। यार आपको जब कोई टॉपिक मिलता है ना, आप लोगों को 8 डायमेंशन दी गई हैं, ठीक है, मैं भी हमेशा आपको वो बोलती हूँ, शुभम मैम भी आई थिंक आपको गाइड करते हैं, है ना, कि ट्राई टू रिलेट द पॉइंट्स टू दीज डायमेंशंस, कि इनके साथ कैसे रिलेट कर सकते हो और फिर पॉइंट बनाओ। अब अगर मैं आपको बताऊं इस टॉपिक के लिए क्या सबसे बेसिक हो सकता था, सबसे पहले आप उसका मीनिंग देते कि टॉपिक का मीनिंग क्या है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले फोकस करो कि ये इस डेवलपमेंट का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक क्या है, क्या बेस है। सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है ना कि ये हमें करना ही क्यों है, इसकी जरूरत ही क्या है। सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है, क्या है जरूरत, क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी, Yes, ma'am. करेक्ट, सस्टेनेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन, करेक्ट। Yes, उसके बाद और क्या हो सकता है, रिजाइलेंस। ग्रीन ग्रोथ का क्या एम होना चाहिए, एक रेजिलिएंट इकोनॉमी जो कि एनवायरमेंटल जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको कम करे और रिड्यूस करे। इंक्लूसिविटी, कैसे कि जो भी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो सब सेक्टर को इक्वली मिले। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनवायरमेंट को सेव करने के लिए हमने एक ही सेक्टर के ऊपर फोकस डाल दिया और बाकी सारे सेक्टर उसको हैम्पर करते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म विजन, of course if we are going for green growth then it should be a long term consequence। अब अगर आप आज यहाँ पर एक कोई प्लान सपोज पब्लिश करती है गवर्नमेंट, तो उसका इम्पैक्ट हमें कल को ही तो नहीं दिख जाएगा, इट विल टेक अ टाइम, ठीक है। इकोनॉमी और एनवायरमेंट पे एक लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए कोई भी अगर हम प्लान कर रहे हैं ग्रीन ग्रोथ के लिए। उसके बाद क्या आ सकता था, एक डायमेंशन बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट है इसके, सबसे पहले इकोनॉमिकली,
सस्टेनेबल प्रैक्टिस में करेंगे इन्वेस्ट, तो इकोनॉमी क्या है, वो ज्यादा रेजिलिएंट होगी इन्वायरमेंटल चेंजेस को। अगर हम नई टेक्नोलॉजीज पे शिफ्ट हो रहे हैं, जॉब बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट होंगी, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी, कंजर्वेशन, इन फील्ड्स में तो ज्यादा जॉब क्रिएशन होगी। हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस होगी, बिकॉज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं हो रहा है तो उतनी हेल्थ इम्पैक्ट नहीं हो रही है, तो हेल्थ केयर कॉस्ट रिड्यूस हो गई। रिसोर्स एफिशिएंसी, जो रिसोर्सेज अभी पता भी नहीं है कहाँ कहाँ हम मिस यूज कर रहे हैं, उनको एफिशिएंटली यूज करेंगे, वेस्ट कम होगा, कंजर्व करेंगे, हम जो वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है उनको कंजर्व करेंगे, ये बेनिफिट होगा इसका। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस, अब अगर एक कंट्री ये चीज करके ग्रो कर रही है तो ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज भी इसको फॉलो करेंगी, राइट। यस मैम। और ये करने से एक सिर्फ हमें ग्रीन ग्रोथ की हेल्प से क्या होगा, हम वर्ल्ड में एक लीडर शो हो सकते हैं, Yes, ma'am. इससे ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है। अब क्या चैलेंजेस हैं, क्यों करना मुश्किल है? सबसे पहले तो इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि इसके लिए ऑफ कोर्स बहुत मॉनिटरी चाहिए है, राइट। यस मैम। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, अभी में भी हो सकता है कि हमारे पास उतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं है या उनको डेवलप होने में टाइम लगे, सो दैट इज अ टेक्नोलॉजिकल बैरियर। इक्विटी, जो हमने इंक्लूसिविटी डिस्कस किया, वो हर एक सेक्टर में इक्वल करना, दैट इज अ चैलेंजिंग ऑल्सो, क्योंकि जो कुछ सेक्टर है वो बहुत हार्म करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो उसको इक्विटी में रखना, दैट इज अ चैलेंजिंग पार्ट, राइट। और भी बहुत सारे, जैसे ग्लोबल कोऑपरेशन हो सकता है, मान लो कि एक कंट्री करना चाहता है बट उसको उसके लिए हेल्प चाहिए दूसरे कंट्री से, यस एंड दे मैम। आर नॉट हेल्पिंग, तो मैम ग्लोबल ये कोऑपरेशन एक चैलेंज है। यस मैम, मैंने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के बारे में बात किया था। यस, ठीक है। और क्या हो सकता है, अब इसके लिए स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं, कैसे कर सकते हो? सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन, जो आप लोगों ने डिस्कस भी किया था कि हाइड्रो एनर्जी वगैरह पे हम ट्रांजिट करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी, जो नीलेश ने डिस्कस किया था, रिसाइकलिंग, रीयूज एंड रिसोर्स एफिशिएंसी, राइट। फिर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा यूज करो, ग्रीन स्पेसेस ज्यादा बनाओ, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, करेक्ट। इंसेंटिव और रेगुलेशंस, कुछ प्राइवेटाइजेशन अगर हो रहा है तो वहां पर कुछ ऐसे बेनिफिट्स होने चाहिए प्राइवेट कंपनीज को, दैट दे आर मोटिवेटेड टुवर्ड्स इट, इट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट। और एजुकेशन और अवेयरनेस, मैम इंट्रोडक्शन में और क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो बता सी दीजिए। इंट्रोडक्शन में तो भी बहुत इंप्रूवमेंट की आपको जरूरत है हर्ष, ठीक है। आपको डायमेंशन देनी होती है, सबसे पहले तो आपको टॉपिक का मीनिंग देना है, ठीक है, जो आपके में आज मिसिंग था। उसके बाद आपको डायमेंशन देनी है। अब देखो, मैंने आपको 4-5 डायमेंशन बताई इस टॉपिक की, ठीक है, कि ये टॉपिक किस किस डायमेंशन में डिस्कस हो सकता था और उसके पॉइंट्स क्या क्या हो सकते थे। आप क्या कर सकते हो, आप एटलीस्ट 2 डायमेंशन तो टॉपिक को दो, अगर आपके पास ऐसा ओपन एंडेड टॉपिक आता है। अब मान लो आपके पास कोई टॉपिक आया जिसका टॉपिक में ही वो सेल्फ डिक्लेयर्ड है कि इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करो या कॉज एंड इफेक्ट डिस्कस करो, फिर तो ऑफ कोर्स आप उसको उसी डायमेंशन में बोलोगे। देन यू कैन से as topic itself suggests that we have to discuss the pros and cons of this thing. यस मैम। और अगर ओपन एंडेड टॉपिक है तो एटलीस्ट 2 डायमेंशन आप ऐसी दे दो ताकि आपके टीममेट्स उस डायमेंशन में बात कर सके। और मैम मतलब जैसे हम ऐसे ही ये हम बोल सकते थे कि ये इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस हो सकते हैं, आप बोल सकते थे कि ग्रीन ग्रोथ के लिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं, सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाई शुड वी ऑप्ट इट। बेनिफिट्स आपने डिस्कस कर लिए, फिर आप और क्या बोल सकते हो, इफ वी आर गेटिंग बेनिफिट देन वी हैव टू मेक श्योर और वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दैट व्हाट आर द चैलेंजेस इन गेटिंग दिस। यस मैम। हो गई डायमेंशंस, करेक्ट। मैम इसमें आप इंट्रोडक्शन को कितने कितने लाइनों तक रखना होता है मैम, कितने? ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि आपको 4 लाइन 5 लाइन या ऐसा कुछ रखना है, बस आपका जो इंट्रोडक्शन है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी क्लियर बिकॉज इट इज द बेस ऑफ द जीडी, इट इज द स्टार्ट ऑफ द जीडी, यस मैम। फाइन। एंड धीरज, मैम जैसे या यस मैम, हम जैसे इंट्रोडक्शन में एक लाइन ये भी डाल सकते थे कि जैसे कि जो अर्थ है ये हमारे हम इसके मालिक नहीं है, ये एनिमल्स की भी है, उनके लिए भी हमें सोचना चाहिए, तो कुछ ऐसा डाल Yeah. सकते थे इंट्रोडक्शन में एक लाइन ना। करेक्ट,
आप कि we ऐसे are कोई not एक the लाइन first ऐड कर owner सकते of हो, the earth. जब ऐसा कुछ आता है ना आपके पास, तो फिर तो आप ऐसा कुछ ऐड कर सकते हो, ठीक है। Yes, ma'am. तो एंड मैम कंक्लूजन, हाँ, या गो अहेड। यस मैम, हैंड मूवमेंट अलाउड है ना? हैंड मूवमेंट थोड़ा बहुत अगर Of करते course, of course, hand तो कुछ gestures सकते हैं। allowed हैं. If you are speaking, if you are trying to convey your thing, then this is so natural that hand gestures will be there, and it is totally fine. Yes, ma'am. But how they are, it is like it is mattered. Okay, ma'am. Okay. Yes. मैम जैसे So then, एक्चुअल जीडी में हम्म एक्चुअल जीडी में क्या होता है कि कभी कभी टॉपिक उतना क्लियर नहीं होता है, जैसे कि ग्रीन ग्रोथ है तो हो सकता है कि वो पैनल बताए या ना बताए, मतलब तो मान लीजिए अगर 20-30% कंफ्यूजन है टॉपिक में, तो इंट्रोडक्शन करना सेफ है कि नहीं, क्योंकि पैनल में तो कई सारे बच्चे होंगे। Yes, Correct. ma'am. See, देखो, ये if होता you है are कि not aware about the topic, if you are not clear about the topic, then never go for the introduction. ठीक है, देखो, आपको टॉपिक का मतलब नहीं पता है, आपको टॉपिक के बारे में ही कुछ नहीं पता और आप इंट्रोडक्शन कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर गोइंग लाइक 100% नेगेटिवली, ठीक है। बट अगर आपको टॉपिक का मतलब नहीं पता है, बस आप इंट्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, बट यू आर लाइक लिसनिंग टू अदर पीपल पॉइंट, तो आप 1-2 मिनट तक उनके पॉइंट सुन रहे हो, तो आपको टॉपिक का मतलब तो समझ आ जाएगा ना उस 1-2 मिनट के डिस्कशन से, कि यार ये किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में डिस्कस कर रहे हैं। सो मे बी देन यू विल बी कैपेबल टू गिव 1 or 2 पॉइंट्स इन योर फेवर, ठीक है। बट अगर आप ऐसे ही उस सिचुएशन में इंट्रोड्यूस करने का रिस्क ले रहे हो, तो फिर तो नेगेटिव हो ही जाएगा, क्योंकि आपको खुद पता नहीं है और ऊपर से आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, है ना। मैम जो पैनल वो आई मीन जो कोऑर्डिनेटर होगा वो हमें बोलेगा, वो हमें चूज करेगा, या हमें खुद से ही अपने आप में चूज करना है See, कोऑर्डिनेटर it totally depends पैनल टू पैनल। जनरली क्या होता है कि पैनल आपको एक टॉपिक दे देगा, वो आपको टाइम दे देगा नोट डाउन करने का, एंड देन आफ्टर कंप्लीटिंग द टाइम यू हैव टू स्टार्ट ऑन योर्स, अच्छा। ठीक है। मैं यहाँ पर आप लोगों से इसलिए पूछ लेती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबको एक बार चांस मिल जाए Yes, ma'am. इंट्रोड्यूस करने का और कंक्लूड करने का, ताकि आप सबको पता चल जाए कि क्या कैसे होता है, ठीक है। कार्तिक, how Ma'am. was your first experience? Good, ma'am. Somewhat tension. Not a fear. Okay. See, you don't have to like be tensed or nervous. Don't be shy. Okay. Just speak Okay. whatever you are thinking. Fine. If it is Okay. wrong, then we'll correct it. But if you will not speak, then I will not be getting that. What are you thinking? And are you aware about the Okay. topic? What are your thoughts? What are your points that you want to speak? Okay. So just speak. Okay. This is Okay. what I can say for the first time. Okay. It was your first Okay. time, so it happens. No issues. It's like pretty normal. Okay. From going forward, don't be shy. Just speak whatever you think. Okay. 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 Any other point? Okay. मैम इंट्रोडक्शन पहली बार दिया था, तो इस बार थोड़ी गलती होगी, फर्स्ट टाइम ही था, तो आगे नो इश्यूज। तभी मैं बोलती हूँ कि अपने एक इनिशिएटिव लेके किया करो, कभी इंट्रोड्यूस करो, कभी कंक्लूड करो। देखो, डिस्कशन तो सब कर ही रहे हो आप लोग, है ना। तभी मैं तो सामने से पॉइंट आउट करती हूँ आप लोगों को कि आज आप इंट्रोड्यूस कर दो, आज आप कंक्लूड कर दो। आप लोगों को पता चल जाता है कि आप क्या चीज बेटर कर सकते हो। अब अगर मान लो हर्ष इंट्रोडक्शन में बहुत ही खराब निकल रहा है, वो कर ही नहीं पा रहा है आफ्टर प्रैक्टिस, तो हर्ष को ये चीज क्लियर है कि फाइनल जीडी में मुझे आके इंट्रोडक्शन तो छेड़ना ही नहीं है गलती से, मैं सिर्फ अपने पॉइंट्स पे फोकस करूंगा, ठीक है। बट अगर हर्ष को पता है कि मैं इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा कर सकता हूँ, सो ही विल ट्राई हिज 100% की फाइनल जीडी में मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, ताकि उसके बाद में अगर मुझे एक बार को टाइम नहीं भी मिल रहा है, इन वर्स्ट केस नो इश्यूज, मैंने इंट्रोड्यूस तो किया था, मैंने जीडी में बोला तो था ना, करेक्ट। Yes, ma'am. इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का कुछ एक्स्ट्रा एज रहता है, मतलब मार्क्स के से रिलेटेड नहीं? नथिंग नथिंग नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। यस मैम, बस यही पूछना था, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा एज हो जाता तो दिक्कत हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बस इसमें ये है कि आप थोड़ा सा एक मेंटली स्टेबल हो जाते हो कि मान लो अगर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया, तो आप उतना भी प्रेशराइज नहीं होगे, बिकॉज आपके फेवर में एक पॉइंट तो है कि इंट्रोडक्शन तो हो ही गया, या कंक्लूड तो मैंने कर ही दिया था, है ना। वो एक चीज हो जाती है। बट फिर ऐसा भी नहीं है कि हमें इंट्रोडक्शन और कंक्लूड करने के अलावा हम सोचे कि हम बीच के पॉइंट बोले ही ना, ठीक है। डिस्कशन में पॉइंट्स बोलना भी जरूरी है, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो कीप ma'am. मेंटेनिंग योर नोटबुक्स। या कार्तिक? Ma'am, while I am speaking, many people are coming in togetherly.
shall I continue that speaker or shall I stop it? See, what you can do na, once or twice you can give chance to the other person, okay, but if it is occurring frequently, then you have to speak, because if you are going to give points or chances to another person, then you will lose your chance. Okay. Okay, मैं मेरा वो कैसा था, मेरा जो मैंने वो करा कंक्लूड करा उसमें कैसे, मतलब धीरज कोई लिखा सबसे था मुझे पहले तो कंक्लूड करना धीरज, है हाँ, सबसे पहले तो ना इसमें जब डिस्कशन हो रहा होता है ना, सो यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस, फाइन, then what happens na, maybe your mic, like your headphones are not connected or what, you never stop. आप जब कोई पॉइंट आप बोलने वाले होते हो तो सामने से भी 2-3 पर्सन बोल रहे होते हैं, दे आर Yes, ma'am. ऑलवेज स्टॉप, आप कभी चुप ही नहीं होते हो, ठीक है, सो ट्राई टू गिव पॉइंट चांस टू अनदर पर्सन एज वेल, ठीक है, यस मैम, ये यस आपका मैम, पेशेंस शो करता है कि आप दूसरे पर्सन को कितना पेशेंटली सुन रहे हो और आप उनको कितना चांस दे रहे हो। और मैम एक चीज पूछनी थी मैम, ये जो एटीट्यूड होता है कि सबको साथ जीडी के टाइम एक होता है ना, मतलब कि सबको कि हमें ये एवरीबॉडी इज एंगेज, तो ये एटीट्यूड अगर हम रखें तो ये सही चीज है ना, मतलब एक्स्ट्रा हाँ, मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल ये सही चीज है, जैसे आपने आज हर्ष किया भी था, दैट कार्तिक को नहीं बोल पा रहा था, सो यू गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी कि वो बोले, बट ये चीज ना तब आप कर सकते हो जब आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, और आपके पास पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, जनरली क्या होता है कि आपके पास और बोल रहे होते हैं ना, तो इतना टाइम होता है, आप अपना पॉइंट बोलने के कैपेबल नहीं हो, वहां पे आपको अपना पॉइंट बोलने का चांस नहीं मिल रहा है, तो आप ये लाइन कैसे बोलोगे कि भाई इसको भी बारी दे दो बोलने के लिए, यस ठीक है, कई बार मैम ऐसा होता है, इसमें बट ये इफ द जीडी इज गोइंग स्मूथ और टीममेट सारे ही आपको लग रहा है कि कोऑपरेटिव है, तो आप ये चीज कर सकते हो, दैट इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो मैं किसी को पॉइंट आउट करना सही रहता है कि जैसे कोई पर्टिकुलर पर्सन है वही नहीं बोल रहा, तो बोल दे कि आप ज्यादा बोल रहे, पॉइंट आउट करके ऐसे जनरल बोल देंगे सबको चांस दें, नहीं कैसे नहीं, पॉइंट आउट आप करना पॉइंट आउट आप बोल सकते हो कि फ्रेंड्स ही इज नॉट स्पीकिंग और ही लेट हिम गिव अ चांस, ठीक है, हो सकता है कि कोई बंदा आउट ऑफ शाइनेस ना बोल रहा हो, बट ये बहुत रेगुलरली नहीं होगा, ठीक है, और ये बहुत वंस इन अ वाइल इंसिडेंट होता है कि आपको ऐसा बोलने का मौका मिल जाए, ठीक है, यस मैम, एंड देयर इज वन थिंग दैट आई टोल्ड यू कि दूसरों को भी चांस दो, देन द Yes, अनदर ma'am. थिंग इज जो आपने कंक्लूजन किया ना, आपने सारे पॉइंट्स Yes, उसमें ma'am. ऐड किए, बट आई ऑलवेज से कि सबके पॉइंट्स ऐड करने के बाद ना एक अपना जेनरिक पॉइंट ऑफ व्यू दिया करो, यस मैम, ठीक है, जैसे मेरा फर्स्ट टाइम था मेरा आज इन कंक्लूजन का। हाँ कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम था तो होता है, बट आगे इम्प्रूव हो जाएगा, यस ठीक है, मैम, यस तो मैम, हमेशा एक अपना माइंडसेट बोला करो बाद में, चाहे आप उसको 2 सेंटेंसेस में ही बोलो। मैम मुझे क्या नीलेश? इम्प्रूव करना है? नीलेश को इम्प्रूव करनी है अटेंटिवनेस, ठीक है, आपको अटेंटिव होना पड़ेगा नीलेश। अभी पहले आप ना, जितना मुझे याद है तो आप बहुत मतलब एक्टिवली परफॉर्म करते थे, बट अभी कुछ टाइम से थोड़ा सा ऐसे चल रहा है हमारा, या तो आप अटेंटिव नहीं हो, या तो फिर आपको टॉपिक इंटरेस्टेड नहीं लग रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट। मैम मैम 3-4 मुझे पॉइंट दे दिया था, मुझे लगा कि अब ज्यादा देंगे तो लगने लगेगा कि ज्यादा घुस रहा हूँ जीडी के अंदर। ये तो प्रैक्टिस जीडी है ना, ये प्रैक्टिस जीडी है, यहाँ पर तो आप जितने पॉइंट्स बोल सकते हो बोलो, मैम क्योंकि और मुझे अगर आप कहाँ पे पॉइंट्स इम्प्रूव मैक्सिमम पॉइंट्स दोगे तभी पता चलेगा कि आपका क्या पॉइंट ठीक है, क्या पॉइंट गलत है। अब मान लो कि आपके पास 6 पॉइंट्स है, बट आपने आज 4 ही पॉइंट बोले, फाइनल जीडी में जाके आपको वो चारों याद नहीं आए, लास्ट वाले 2 पॉइंट्स रहे याद, एंड यू आर नॉट श्योर कि वो पॉइंट ठीक है या गलत है, क्योंकि वो आपने पहले यूज ही नहीं किए, करेक्ट? यस मैम। शुभम, योर वन थिंग इज वेरी गुड कि आप ना लैंग्वेज पे उतना परेशान नहीं होते हो, आप जो बोलते हो ना वो क्लियर बोलते हो, ठीक है, वी जस्ट नाउ यू जस्ट हैव टू बी मोर अटेंटिव, ठीक है, अपनी वॉइस को, अपने बोलने के तरीके को थोड़ा सा अच्छा करो, दैट आई वांट टू ऐड अ न्यू डायमेंशन टू दिस, सो फ्रेंड्स आई वांट टू टेक यू टू अ न्यू लेवल और टू द न्यू डायमेंशन, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाओ कि आपको पॉइंट स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है, एंड ऑलवेज मेक अ हेडिंग टू द टॉपिक, जो भी आप पॉइंट बोलने वाले हो उसको एक हेडिंग दे दिया करो, लाइक टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आप क्या बोलने वाले हो उसके बारे में बोल दो। अब क्या आपने एक हेडिंग दे दी, अब आप टेक्नोलॉजी के नीचे 2 पॉइंट्स बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी बैरियर्स कैसे, बहुत ज्यादा हमारे पास इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज नहीं है,
और इसके लिए बहुत रिसर्च चाहिए और रिसर्च के लिए बहुत पैसा चाहिए, ठीक है। Yes, ma'am. एनी अदर क्वेश्चन? मैम जो एक्चुअल मीटिंग होगी उसमें जो स्पेसिंग होगी क्या कहते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, वो बहुत ज्यादा तो नहीं होगी ना कि दूर दूर हो फिर हमें जोर से बोलना पड़ता है, ऐसा तो कुछ नहीं, Nothing, साथ साथ ही nothing. होता है। No, nothing like that. ठीक है, Okay. Keep ओके maintaining Yes, your ma'am. notebooks. Practice more. इसके बाद भी पॉइंट्स नोट डाउन करो एंड एनालाइज Yes, ऑल द ma'am. टॉपिक्स अगेन और रिवीजन करते रहो, ठीक है। यस Yes, Okay. ma'am. We'll meet tomorrow. Okay. Keep practicing. Okay. Bye bye. Okay, thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you.